Hello everyone. This video is about modern history. तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं आज से एंड हम लोग क्या करेंगे कि पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे इन वेरी कंसाइज मैनर. ज़्यादा लेंथी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यूपीएससी का जो सिलेबस है मॉडर्न हिस्ट्री का वो बहुत ही कंसाइज और प्रिसाइजली रिटन है. So we will be dealing with modern history from now onwards, and this video or this series of modern history will comprise of lectures which will be more inclined towards short notes form. So हम लोग ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे कि हिस्ट्री ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री को जीएस और मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं. एंड वी विल बी डीलिंग विद मॉडर्न हिस्ट्री एंड द सोर्सेज विल बी एनसीईआरटी 6 to 12th and also some of the standard textbooks like of Bipin Chandra and some of the premier coaching institute notes will also be taken as the reference sources so that we can have the structured approach for the modern history. So this video is a comprehensive video, and the further series will be having the remaining part of the modern history. In this playlist you will get all the modern history notes, and also the videos will be accessible to you for reference. So let us start. So it will be very concise. So सबसे पहले the first thing is that what is modern history? So modern history is divided the history of India. It is not the complete world history, it is the history of India. And the modern history starts with the arrival of the foreigners, in foreigners like Portuguese, like Dutch, like the English. The main part will be the English East India Company, but उसको जानने से पहले we have to know the order in which these foreigners come to Indian land. So the order they come for trade actually. So first is modern India, and order is PDEF: Portuguese, Dutch, English, Danes, and French. So in Portuguese, in 1498, a person named as Vasco da Gama arrived. So where he arrived? He arrived at Kerala, Calicut. Then comes ki after this order, then comes ki the major factories established by French, and there is a person named Francis Day. So he acquired land from king of Chandragiri. Now factories. So what are these factories? So they called clerical staff as factors. So where the factors used to work, they called as factories. The clerical staff where it used to work, it is called as factories, and they were primarily warehouse or godowns. So French factories, if we write by this, so French factories were, major French factories were Surat, Mahe, Jinji, Pondicherry, and Chandanagar. Then the factories that were
established by English people. So we write this by green color. So English also established. English, they belong to Anglo. The race was called as Anglo-Saxon. So that's why it is called Anglo. They were the race was also given priority. Like we study later about Carnatic wars, they were called as Anglo-French wars. So Anglo comes from the race in which English people belong. So actually, the order was there was one person named as William Hawkins. He went to court of Jahangir and got permission to establish factory at Surat, but he was not able to establish the factory, and they established it at Masulipatnam. So Masulipatnam is on east coast, and it was 1611, and these factories like 1668. Surat was established by 1668. Chandnagar is in West Bengal. It is important because we will be reading this, because this will be the part of the battle of Buxar, Palasi and Buxar. These Chandnagar is related to that part. So we understand that there is a person called as William Hawkins. He went to the court of Jahangir, got permission to establish factory at the Surat, Masulipatnam, East Coast, 1611. First factory, so they established on West Coast, that is Surat actually, but that was in 1630. And on East Coast, it was Balasore, 1633, and it is in Odisha. So this Masulipatnam is in the south part. So then like if we want to draw the map, so if we have this, so this was 1613, this was 1611, and this is 1633. This is Balasore, this is Masulipatnam, and this is Surat. And above this, actually in this part, this region was particularly belonging to Mughals, and this region was particularly belonging to Mughals. So in the territory of Mughals, they established in 1633 on the east coast, and 1613 west coast, and in 1611 they were able to establish in Masulipatnam. And this part was of Golconda, and this was of Bijapur. So this was Golconda region, and this was Bijapur. We will be dealing about this in geography also, but for the sake of complicity we are doing. Then comes, so how to remember this now comes. So we can have like blue color. So it is French are related to SMJ PC, Surat, Mahid, Jinji, Pondicherry, and Chandnagar. And now these are MSB, Masulipatnam, Surat, Balasore. So Masulipatnam was the first, then Surat, then Balasore. Then comes the three important factories. Three important factories. So what are the three important factories? और किसकी हैं ये? ब्रिटिश की हैं. So ब्रिटिश की तीन important factories हैं. तो इसका नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज 1639. So 33 में ये बनी. उसके बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज ये मद्रास के अंदर बनी.
then comes Bombay 1668, and then comes Fort William 1698, and this is in Calcutta. So now to remember this is St. George, this is in Madras. So we have to remember this Fort William. So William Hawkins. So William Hawkins was the first person who went to court of Jahangir. So for remembering only, we can remember it like the person who went to the court of Jahangir was the William Hawkins. So on his name it was Fort William, and then Fort St. George. St. George was in Madras, and then Bombay they got in, ये दहेज था, तो दहेज प्रथा के खिलाफ थे, बट इनको दहेज मिला. देन so this is primarily about the factories and this, and then comes that there were certain wars which took place between Anglo and French people. So this is called as the Carnatic War story. So Carnatic Wars, or famously known as Anglo-French Wars. Or famously known as Anglo-French Wars. So Anglo-French Wars. So, and in these they were able to establish who Britishers. So Britishers were able to establish their supremacy, and these were 3 wars. So these are Carnatic War 1, 2 and 3. So Carnatic War जो 1 था, ये था 1746 to 48, then 49 to 54, and then 58 to 63. 56 से 63 को इसको 7 years war बोलते हैं, इसको बोलते हैं 7 years war. और ये लड़े गए थे, ये जो युद्ध लड़े गए थे, these wars were fought in this area. So this was Carnatic. So these were Carnatic. So Carnatic Wars or Anglo-French Wars were established the supremacy. So established the supremacy of Britishers, and there were 3 wars. और ये बात याद रखो, देखो 1600 के अंदर तो उन्होंने फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करनी स्टार्ट की थी. जो 1600 की साल थी, 1600 से 1700 के बीच में उन्होंने फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर दी थी. क्योंकि अगर आप देखते हो तो जो 1611, 13, 33 फिर उसके बाद ये 39, 68, 1698, देन दे स्टार्टेड फाइटिंग वॉर्स इन 1750 के आसपास. तो 1857 में तो क्रांति आजादी के अराउंड 90 साल पहले हमने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी, वो 1857. उससे 1 साल पहले से युद्ध स्टार्ट हुए थे. तो कर्नाटिक वॉर्स जो थे 1746 से 1748, 49, 54 और 68 से 63. तो ये 46 और 48 तो आजादी से एग्जैक्टली अराउंड 200 साल पहले. तो ये 200 साल पहले ये लड़ाई छिड़ी थी, जिसके बाद इसीलिए हम कहते हैं 200 साल हम गुलाम रहे. तो ये स्टार्टिंग 200 साल की यहाँ से थी. 1746 से 1748 में ये वॉर लड़े गए, 49 से 54 और 58 से 63. एंड सो नाउ इफ वी सी कि अभी आ जाते हैं कि ये तो साउथ में लड़ी गई थी, और मुगल हमने पढ़े कि इसके ऊपर थे. तो अब आ जाते हैं कि मुगल्स की स्टोरी क्या थी इस टाइम के ऊपर. तो मुगल्स को अगर हम देखते हैं तो मुगल्स के अंदर हो क्या रहा था कि मुगल्स का अगर आप पीरियड देखते हो तो मुगल्स में हम सबको पता है कि औरंगजेब नाम का बंदा था. तो औरंगजेब की डेथ ईयर थी 1707. ये इंपॉर्टेंट. ये इसने क्या किया कि इसने 50 साल के अप्रोक्स इसने राज किया. तो 50 साल मतलब इसमें से 50 घटा दो तो 1658. 50 कर नहीं पाए, 49 पे ही था, मतलब एग्जैक्ट 50 कर नहीं पाए. तो इट इज लाइक विराट कोहली और एनी अदर क्रिकेट. तो उन्होंने क्या किया कि वो 49 पे आउट हो गए, मतलब नॉट एबल टू अचीव 50. सो 1658 से 1707 तक वो चला.
अब उसके बाद क्या आया कि उसके बाद नाम आया बहादुर शाह जफर का, बहादुर शाह नाम, बहादुर शाह फर्स्ट। फिर उसके बाद आया जानदार शाह। अब देखो ये शाह साहब, फिर उसके बाद आया फारूक सियार, फिर उसके बाद आया मोहम्मद शाह। और ये मोहम्मद शाह, अब देखो ये इनकी शाह शाह शाह, और ये बीच में आया सियार। तो ये अमित शाह वाला शाह नहीं, मतलब वैसे है तो ये शाह, तो ये शाह जो थे तो ये आए। अब देखो ये जो सीरीज याद की जाती है, ये याद की जाती है इससे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह, तो JFM, तो इसको ऐसे याद कर लो JFM। तो जहांदार और शाह तो शाह है, फारूक, सियार और मोहम्मद शाह। और ये मोहम्मद शाह था, इसी को बोला गया रंगीला। तो ये मोहम्मद शाह को रंगीला बोला गया। अब इस पीरियड के अंदर क्या हुआ कि ये जो मोहम्मद शाह था, इसने ये देखो ये 1707 में आउट हुआ, और 1707 से 12 साल, मतलब 12 साल, तो जो सॉन्ग्स भी है कि 12 साल, ये जो वो रांझा और उसकी कहानी है कि 12 साल, 12 साल के बाद ही ये क्या हुआ कि इसी पीरियड के अंदर बहादुर शाह, जहांदार शाह और फारूक सियार ये तीनों निपट गए। ये क्या हुआ, ये 5 साल के लिए रहा, ये 5 साल का ही था, इन्फेंट ही रहा। ये एक ही साल के लिए आया बेचारा, ये सिंगल रन बना के आउट हो गया। और फिर ये 6 साल के लिए हुआ, ये टोटल दोनों को जोड़ के जो 6 साल बना, ये 6 साल बना। और ये जब 19 में जब ये चला गया तो 1719 से, तो 1719 से और 1748 तक, मतलब 1746 से 48 का जो लड़ाई हुई कर्नाटक की, उस दौरान तक ये राजा थे। इसके पीरियड के अंदर मोहम्मद शाह रंगीला के अंदर 3 जो एरिया थे इंपोर्टेंट, वो अलग हो गए। एक था अवध, एक था हैदराबाद, और एक था बंगाल। तो ये जो ये इनको बोलते थे ये सूबा। तो ये जो सूबा थे ये हो गए सेपरेट, तो ये सूबा सेपरेट हो गए। तो इन्होंने प्रोक्लेम नहीं किया, तो इन्होंने क्या किया, ये नॉट प्रोक्लेम्ड विथ, इन्होंने पैसा वैसा देना बंद कर दिया, but started acting. So it means they are not proclaimed it कि we are independent kingdoms or something like that, but they started acting independently. ना वो उनसे कुछ पूछते थे, और ये अलग रहने लगे। अब इन तीनों के नाम याद रखने। अब ये देखो, इसका ऊपर तो निजाम थे, तो निजाम आ गए, और ये अपने आप को पूरा मुल्क मानते थे, तो निजाम मुल्क आ गए। फिर उसके बाद अवध था और बंगाल था। तो बंगाल के अंदर और अवध के अंदर जो हमें नाम याद करने हैं वो है सादत खान। इसके अंदर था सादत खान, इसका एक कोई मतलब रिलेटिव था जो शायद इसका दामाद था, उसके नाम पे दिल्ली में सफदरजंग। और ये था मुर्शीद कुली खान MK के, और ये था सादत SK। तो ये देखो ये दोनों थे खान, ऐसे याद करो। और ये मुर्शीद था और कुली भी था। तो मुर्शीद और कुली, क्योंकि बंगाल के अंदर अगर आप रेलवे स्टेशन के ऊपर जाते हैं तो कुली मिलते हैं, तो और खान, तो कुली खान तो याद हो गया, मुर्शीद वैसे, और ये निजाम था और मुल्क था। और ये सादत और खान, सादत अली खान मतलब सादत खान, तो ये शाहरुख खान की तरह लगता है, शाहरुख खान, सादत खान, ऐसा। तो अब ये हो गया अवध, हैदराबाद और बंगाल। तो ये जो अगर आप एरियाज को अगर आप देखते हो, तो ये एरिया और ये एरिया, तो इसके अंदर कौन था, सादत खान, इसके अंदर कौन था, निजामुल मुल्क, और इसके अंदर कौन था, कुली खान और मुर्शीद कुली खान। तो ये तीनों याद हो गए। अब ये तीनों जब अलग हुए, ये कब अलग हुए, इसके बनने के 1720 के अंदर, मतलब 13 साल तक। तो उनको लगा कि भाई औरंगजेब था, औरंगजेब का रूल था। अब देखो ये सब होने के बाद क्या हुआ कि 1717 आ गई। 1717 में 6 साल के लिए कौन खेल रहा था, फारूक सियार। अब सियार के टाइम के ऊपर ही, फारूक सियार के टाइम के ऊपर ही एक फरमान दिया, तो फरमान दिया गया। अब फरमान मैं एक बार इसको रिवाइज भी करवा दूंगा, जैसे ही मतलब
एक के बराबर का काम होगा। तो हम क्लास बाय क्लास चलेंगे, मतलब ऐसा रखेंगे कि क्लास के अंदर इतना ही कंटेंट करें जो कि याद भी रहता है। तो फारूक सीआर के टाइम के ऊपर एक फरमान इशू किया गया। किसको किया गया? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान इशू किया गया और इसको कहा गया, इसके नाम पे दिया गया कस्टम फ्री, कस्टम ड्यूटी फ्री ट्रेड। कस्टम ड्यूटी फ्री ट्रेड दिया गया कहां से? बंगाल से। तो एक सेकंड में पानी पी लेता हूं। तो इसके नाम के ऊपर क्या हुआ कि फरमान दे दिया गया। फरमान का काम क्या था कि इन लोगों ने दे दिया फरमान, तो कस्टम ड्यूटी फ्री ट्रेड दिया गया कहां से? बंगाल से। इन्होंने बोला कि बंगाल जो है, बंगाल से कस्टम ड्यूटी फ्री ट्रेड होगा, ठीक है। और इसके बदले में अब कस्टम ड्यूटी क्या होती है कि जैसे कोई चीज, कोई सामान लेके जा रहा है या उसके ऊपर जब ड्यूटी जो लगती है कि कस्टम्स की, तो वो ड्यूटी जैसे ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टाइप के ऊपर रहता है। तो इन्होंने कहा कि जब अगर आप ये कोई सामान लेके जा रहे हो बंगाल से, तो उसमें कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होती। अब भी जैसे बोलते हैं कि अभी लेटेस्ट में आ रहा है कि कोई कस्टम्स में आपके सामान पकड़े गए, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड रहता है। तो अगर कोई आप बॉर्डर से बाहर ले जा रहे हो सामान, तो कस्टम ड्यूटी लगती है। तो जो कस्टम्स थी वो फ्री कर दी गई और इन्होंने कहा कि भाई तुम इतना ज्यादा सामान लेके आ रहे हो, अब तुम इतना ज्यादा सामान लेके आओगे यहाँ के मतलब कंट्री के अंदर, तो तुम कितना भी लेके आओ, एक फिक्स कर लो। मतलब डेली डेली इसका हिसाब रखने की बजाय 3,000 रुपए दे दो हमको। तो 3,000 रुपए सालाना एनुअली जो थे वो देने लग गए टू द मुगल एम्पायर। द ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी और ये इसके लिए क्या करने लग गए, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक वो दे दिया कि दस्तक इश्यू कर सकते थे। तो दस्तक क्या थी? पासिस थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अलाउड टू इश्यू पासिस, दैट इज दस्तक, फॉर इट्स ट्रेड। तो ये अब जैसे बोलते हैं ना दस्तखत कर दो, तो ये दस्तक जो थे ये दे दिए जाते थे कि इसको ये आइटम जो है ये यहाँ से यहाँ तक फ्रीली मूव करेगा। कोई भी जैसे मान लो कि कोई उसका सैनिक है, कोई पुलिस है, वो जो लोग खड़े हैं वो उसको देखेंगे नहीं कि क्या लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो, इस आइटम के लिए तुम अथोराइज हो कि नहीं हो। तो वो कह देते थे कि हमारे पास ये दस्तक है, हम इसको ले जा सकते हैं, हमने इसका टैक्स दे रखा है। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसके अंदर उन्होंने कहा कि एक तो कंपनी के नाम पे ले जाया जाएगा कि भाई मान लो कि मैंने कहा कि मेरे कंपनी ने ये आइटम खरीदा है और इस आइटम को ले जाके और हम कहीं पे बाहर ले जा रहे हैं। एक मैंने कहा कि मैं खुद ही लेके जा रहा हूँ, मैं अपने उसके ऊपर मैं खुद ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ। तो वो भी अलाउड थे कि कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे वो भी अलाउड थे ट्रेड करने के लिए। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो सर्वेंट थे and employees were also allowed to trade, but they were not included in this firma. They were required to pay custom duty when trading in individual capacity. So they were allowed to do trade. So they were allowed to do trade, but not included in this firma. Not included in this firma means they were supposed to pay custom duty when doing trade in individual कैपेसिटी। तो ये सब ये एक बैकग्राउंड था कि ये सब हो रहा था बंगाल के अंदर। और फिर उसके बाद आता है कि ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश ने बंगाल को ऑक्यूपाई कर लिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक जो था अलीवर्दी खान, अब 1720 के टाइम पे भी ये सेपरेट हुए थे, तो कुली खान और ये, फिर उसके बाद आ गया था तो उसके बाद जैसे चलते चलते बंगाल के अंदर जो राजा बन गया था, मतलब जो नवाब था वो था क्या था, अलीवर्दी खान।
तो अलीवर्दी खान जो था ये 1742 से 1756 तक, मतलब अराउंड 14 ईयर्स ये रहा। और 1756 के अंदर और उसके बाद बना सिराजुद्दौला। अब ये नाम याद रखना। अब हमने अब तक जो नाम याद रखे हैं वो रखे हैं। अब हमने अगर हम स्टार्टिंग से देखते हैं तो हमने स्टार्टिंग से नाम याद रखा, एक तो ऑर्डर्स का, फिर उसके बाद हमने याद किया क्या फैक्ट्रीज के नाम की, सूरत, माही, जिंजी, पौंडीचेरी, चंदनगर। फिर उसके बाद हमने नाम याद किया विलियम हॉकिंस का, फिर मसूलीपट्टनम बनाया, फिर उसके बाद सूरत बनाया, फिर उसके बाद बालासोर बनाया, फिर ये जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, बॉम्बे और विलियम्स बनाया। कर्नाटिक वॉर्स की डेट याद की और इनके नाम याद किए कि बहादुर शाह जफर के बाद जानदार शाह आया, मतलब बहादुर शाह के बाद जानदार शाह, फिर फारुखशियार, फिर मोहम्मद शाह रंगीला। उसके टाइम पे 3 लोग, एक सादत खान बना। अब उसके बाद जब नाम याद आता है वो आता है कि अली वर्दी खान। तो एक तो ये वर्दी, इसको ऐसे नाम याद कर सकते हो, अली प्लस वर्दी, और खान तो ये चलते ही आ रहे थे। फिर उसके बाद जो इसकी 3 डॉक्टर थे, तो एक जो डॉक्टर थी उसको उसके बेटे को दे दिया इसने, ये थ्रोन दे दिया। अब क्या हुआ कि ये 1756 के अंदर, जैसे ही 1756 हुई, मतलब 5-7 ईयर्स वॉर स्टार्ट हुआ, ये उसी टाइम के ऊपर ये बना नवाब। अब क्या हुआ कि इसी टाइम के ऊपर जब ये नवाब बना तो इनके पास खजाना होता था, इसमें खजाने में सोना वगैरह होता था। तो एक नाम था कृष्णा वल्लभ। तो कृष्णा वल्लभ जो था ये भाग गया फंड लेके, फ्लड विद फंड्स। और इसकी जो वो थी वो मुर्शिदाबाद से, वही फोर्ट विलियम, अब देखो फोर्ट विलियम वही विलियम आ गया। तो ये मुर्शिदाबाद से भागा, मुर्शिदाबाद से भाग के ये फोर्ट विलियम में चला। तो अब इन्होंने क्या किया कि अब क्या हो रहा था, हो तो रहा था 1756 में वहां पे युद्ध। तो इनको ये था कि ये कभी भी अटैक भी कर सकते हैं फ्रेंच। इन्होंने क्या कर रखा था, फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। फोर्टिफिकेशन हो गया था, मतलब उसके फोर्ट की दीवारें वगैरह मजबूत ऊंची बनाना, कैनन्स रखना। तो ये 2 चीज। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको शेल्टर दे दिया, शेल्टरिंग टू कृष्ण बल्लभ। अब देखो ये जो सिराज है, ये फास्ट बॉलर, और ये दौलत, तो दौलत लगा लो। तो सिराज और दौलत, तो सिराजुद्दौला के नाम से ये फेमस हुआ। और ये भी टेम्पर्ड है और ये भी टेम्पर्ड थे। इसने क्या किया कि इसने फोर्टिफिकेशन, इसमें 3 ये जो 5 पॉइंट हमको यह समझना है कि भाई क्या क्या चीजें थी जिसकी वजह से अब लड़ाई स्टार्ट होगी। तो इन्होंने देखा कि जब जैसे ये नवाब बना और इसको थ्रोन मिला, तो इसको थ्रोन मिलते ही क्या हुआ कि इसको जैसे ही थ्रोन मिला तो इसने थ्रोन मिलते ही इसके पास कारण जो थे, एक तो फोर्टिफिकेशन का, एक कैनन रख रहे थे, एक शेल्टर दे दिया। शेल्टर किसको दिया, एक रेवेन्यू ऑफिसर था, ये क्या करता था, उससे वो माल मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करता था। किसके अंदर थे, नवाब के अंदर था। और इसको इसके ऊपर क्या चार्जेस थे, इसके ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड के चार्जेस थे। अब फाइनेंशियल फ्रॉड के चार्जेस थे। और फिर एक जो इसकी बेटी थी, किसकी, अलीवर्दी खान की, उसकी बड़ी बेटी थी घसेटी बेगम। तो घसीटी बेगम का क्लेम था कि मेरे बेटे को मिलना चाहिए, मतलब तो उसको थ्रोन मिलना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि हाँ जी हाँ बिल्कुल आपके बेटे को मिलना चाहिए, ये वो। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद 5वीं जो चीज आई वो आ गई थी मिस यूज ऑफ फरमान। तो जो एम्पेरिकल फरमान था 1717 के अंदर, जो फारूक सियार के टाइम के ऊपर, और जो वो दिया जा रहा था। अब देखो 19 के अंदर तो वो बन गया था, तो जो 6 साल पहले, मतलब 13 से 17,
13 से 17 के बीच के अंदर जो था ये फरमान उसको दिया जा रहा था, तो उसके लिए किया गया था। अब ये मिसयूज था, तो अब इनकी वजह से क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने स्टार्ट कर दिया। एक सेकंड।